तो I cracked फिर Amazon, Microsoft, Atlassian, Uber. I cracked all of these Lots of companies. offers. Yeah, सबसे so ज़्यादा CTC किसने ऑफर किया? and I work from home, so we had to take a 3 BHK. And that itself is like 70K rent, 70, 80K. I think we started from 60, 70, push to 80, push to 90. एग्री कर रहे थे वो 90 में भी एग्री कर रहे थे. They were agreeing for 95 once, yeah. चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो या कोई भी हो, मतलब एक ब्रांड खड़ा करना is a learning in itself, तो वो मैं सीख रही हूँ अब. बहुत लोग मेरे को एकदम बेवकूफ़ बोलेंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि इतना ज़रा पैसा छोड़ के क्या कर रही है लाइफ में. Hi everyone. So in this podcast we have Kirti with us and Kirti ने recently अपना एक बहुत ही अच्छा पैकेज छोड़ के कुछ स्टार्ट किया है. So we'll know about this. स्टार्ट करते हैं कीर्ति with a short introduction of yours. Sure. Thank you so much for having me and so nice to be here guys. फ्रास के साथ मैंने पहले कोलैबोरेट किया हमारे चैनल के लिए and he did amazing. We did a mock interview. But a bit about me for those of you who don't know. तो I started as a software developer, then I started teaching. फिर लोग बहुत कनेक्ट करने लग गए. तो now I have moved on to content creation and I have started my own ventures as well. तो I guess हम डिटेल में बात करेंगे. अभी he is going to suck a lot of knowledge. तो सब पोल खुलने वाली है अभी, तो लेट्स सी की. ऑलराइट कीर्ति, सो टेल अस अ बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. आपने कहाँ काम किया हुआ है एंड व्हाट वर द सैलरीज? ओके, सैलरीज. I started from Tally Solutions, 6 LPA की एकदम बेसिक सैलरी, एंड आई वर्क देयर फॉर लाइक 1.5 years. बट मेरा काम बहुत अच्छा था, बहुत सीखा, बिकॉज आई वॉज अ नॉन सीएसए स्टूडेंट एंड आई गॉट टू वर्क ऑन बैक एंड माइक्रो सर्विसेज पे. पूरा बेसिक्स हम लोग लिखते थे कोड. इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करने में. बट देन और सीखना था एंड आई वॉज लाइक अ प्रॉपर बैक एंड डेवलपर. So I left that and joined Unanimous Solutions, which was a startup, and I was the only employee, not just the only developer, the only employee. तो मतलब सब कुछ खुद किया वहाँ पे, समझना customer need and फिर उसके लिए कोड करना. I was working on a completely new tech, Flutter, and back in 2017 Flutter had just come. मतलब तो बहुत ही नए उस पर मैं काम कर रही थी. In 6 months that was there, and the package was almost similar because उस वक्त money was not an issue. I was like कि मुझे अच्छा software developer prove करना है अपने आप को कि I can do this. So actually that is the most interesting conversation I have, especially in the interviews, because people get very impressed कि भाई पैसे का नहीं सोचा and went for learning and developed something all by herself. बट हम लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि जब हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा. तो आई वर्क देयर फॉर 6 months, डिलीवर्ड द प्रोडक्ट, एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन अ हैकाथॉन एंड गॉट अ जॉब एट इंटुइट, विच वॉज अ गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड जब मैंने इंटुइट से पूछा था तो आई हैड आस्क्ड फॉर 10-12 LP बिकॉज आई थॉट इससे ज़्यादा क्या ही मिल जाएगा. बट देन दे ऑफर्ड मी 17-18 से भी ज़्यादा, एंड वहाँ पे भी और ज़्यादा ग्रो किया तो इंटुइट की सैलरी बढ़ती गई टाइप का. सो दैट वाज वेरी गुड. अगेन वर्क देयर फॉर 2.5 years. सो got good enough experience. While I was at Intuit, I started teaching and I became a YouTuber. I started teaching DSA, but then again अपने आप को और challenge करना था. तो अब ठीक है, अब full stack developer बन गए, DSA पढ़ाने लग गए, DSA में बहुत अच्छे हो गए. तो I wanted to challenge myself in system design. तो बहुत सारा low level system design पढ़ा, high level system design पढ़ा, and पर मेरे को वो पढ़ाने नहीं था until I'm very sure. Then that phase came when I applied to the companies. I was like कि अभी तो एक ही कंपनी को अप्लाई करते थे वहाँ पे हो जाता था. तो I had only interviewed properly for Intuit, no other company, right? So I really wanted to see कि what am I capable of, because I am teaching, right? So I should be able to crack the interviews also before I do full-fledged teaching, or I am sure कि हाँ I know what I am doing. तो I cracked फिर Amazon, Microsoft, Atlassian, Uber. I cracked all of these companies. Yeah, सबसे ज़्यादा CTC किसने ऑफर किया? Amazon. तो Amazon was like कि आ जाओ बस जितना चाहिए. मतलब तो मेरा मन नहीं था Amazon ज्वाइन करने का. मल्टीपल रीजंस आई थिंक मैंने कवर किए हैं. तो मैं उनको सॉर्ट ऑफ मना करने के लिए बहुत ज़्यादा पैकेज बोल दे रही थी कि मैं बहुत पुश कराते. आई थिंक वी स्टार्टेड फ्रॉम 60-70, push to 80, push to 90. एग्री कर रहे थे वो 90 में भी एग्री कर रहे थे. They were agreeing for 95 once, yeah. तो I was मतलब ऐसे ही पूरा धक हो रहा था कि क्या मना कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं. बट मतलब बहुत सारे रीजन थे उस वक्त. पूरा थॉट प्रोसेस था, बहुत सारा सोच के फिर एटलाशियन ज्वाइन किया कि वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होगी, काम अच्छा होगा,
यूट्यूब भी अच्छे से कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे कम्युनिटी को अच्छे से, आई बी एबल टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, जो मन है करने का, दोनों चीज़ें सब पैरेलली, राइट? बट देन things did not work out that way, and मैंने बहुत ही ऐसे, if you see monetary wise it was a very stupid decision. अगर मैं Amazon join करती तो Amazon में we get stocks every month. Atlassian में we get at the end of the year. So I did not get any stocks from Atlassian and I left in 6 months. Okay. How much did you make in this? So whatever I was making in hand salary, right, that is it. मतलब which was around like जितनी होती है 2.5 3 के आसपास, मतलब तो obviously cannot give exact numbers, but हाँ, around that range, and it is all I made in Atlassian because no stocks, because I left in 6 months. Correct. अगर मैं वहाँ पे 6 महीने और रुक जाती, I would have made like a huge amount of money. Yep. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट क्रायो. So Cryo is world's first experiential learning and upskilling platform for aspiring software developers. So Cryo follows learn by doing approach. अब ये learn by doing approach क्या है? So you learn while working on projects, real world projects, just like building applications similar to Amazon, Netflix, Swiggy, and scaling them up. तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते यू लर्न. अब इन प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल करिकुलम के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड मेंटर सपोर्ट एट क्रायो, एंड दीज मेंटर्स आर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, स्विगी, पेपैल एंड अदर टेक जाइंट्स. तो इनसे आपको ना काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स मिलेंगी कि एक रियल डेवलपर एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है. सेकंड थिंग इज क्रायो ऑफर्स एक्सक्लूसिव करियर असिस्टेंस एंड दे हेल्प यू बिल्ड अ वेरीफाइड गिटहब पोर्टफोलियो which is definitely going to help you in your placements. So now let's talk about fellowship program in software development. तो यहाँ पर आपके 2 ट्रैक्स हैं. वन इज बैक एंड, द अदर ट्रैक इज फुल स्टैक. यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज ट्रैक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, यू विल बी लर्निंग अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट करते करते आप लोग CS फंडामेंटल्स एंड डेवलपर फंडामेंटल्स सीखेंगे. देन यू विल बी वर्किंग ऑन सम ऑसम प्रोजेक्ट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एज वेल. तो यहाँ पर आपको ना एक डिटेल्ड करिकुलम मिल जाएगा विच विल कवर योर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड सिस्टम डिजाइन फॉर इंटरव्यूज. अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस प्रोग्राम क्रायो ऑफर्स जॉब गारंटी by job search support, referrals, and career guidance by experienced coaches. Cryo is also trusted and recognized by NSDC, which is an entity of Government of India. बाकी आपके फ्री ट्रायल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली गो एंड बुक. और अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. और लोगों को यकीन नहीं होता है जब लोग सुनते हैं ना 1 CR का पैकेज. सो आई हैव सीन पीपल नॉट ट्रस्टिंग दिस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में इतने पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं. ऑनेस्टली देखो, बहुत लोग तो अपना फॉरेन का CTC लगा देते हैं, विच इज़ ट्रू. अगर मैं ऐसे लगाऊं तो मेरे को अमेजॉन लंदन का ऑफर था, तब तो फिर मतलब आई कैन पुट 1 CR से भी ज़्यादा, मतलब कि बट माइन वॉज टचिंग दैट. एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऐसे डालती कि आई हैव लेफ्ट अ 1 CR जॉब, बट देन दैट इज़ वॉट वर्क्स फॉर यूट्यूब. एंड मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं, एंड टू मेक देम रियली नो कि यार ऐसा है, मतलब आई हैव टू बी बोल्ड इनफ एंड talk what people want to hear. So I have now become bold enough कि ठीक है, एडजस्ट तो आप ऐसे भी करोगे, तो जो है सो है. बट द पॉइंट इज कि अगर मुझे पैसे का इतना होता तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही कर रही होती. आई वुड नॉट बी डूइंग. बहुत लोग मेरे को एकदम बेवकूफ़ बोलेंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि इतना ज़रा पैसा छोड़ के क्या कर रही है लाइफ में. एक्चुअली इट वाज अ डिसेंट अमाउंट, मतलब पर मंथ आपको एक फिक्स सैलरी आ रही है, इतनी अच्छी सैलरी आ रही है. एग्जैक्टली राइट, इतनी सेफ्टी भी है. Yes. तो आपको डर नहीं लगा ये डिसीजन लेते हुए? यार किसको डर नहीं लगेगा, मतलब. एंड स्पेशली अगर आप जैसे एटलाशियन जैसे उसमें काम करें तो 5 days a week इफ यू डू वेल, यू हैव वीकेंड्स फॉर योरसेल्फ. आप अच्छे से एंजॉय करो, आप ट्रैवल करो, पेड लीव्स है. वर्सेस व्हेन यू डू दिस फुल टाइम, वीकेंड और वीकडे में कोई डिफरेंस नहीं है. यू आर वर्किंग फुल टाइम, देयर इज नो मंथली सैलरी कमिंग इन, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क. बट देन यस, चलो बिजनेस के बारे में थोड़ा बात भी करते हैं. व्हाट इज योर वेंचर? So I am working on multiple things other than full time content creation. मतलब YouTube तो मैं कर ही रही हूँ, वहाँ पे पढ़ा भी रही हूँ and बाकी content भी create कर रही हूँ. Other than that, there are 2 major things. One is the literate store. So I'm wearing the T of literate store, and we started with T-shirts, oversized T-shirts and hoodies. So the tagline is a high IQ lifestyle. So this was basically, I have an audience of software developers. I have intellectuals connected with me. So I wanted to, have something for them also. So not just T-shirts, oversized T-shirts, hoodies. We plan to get desk mats, laptop bags, laptop sleeves, water bottles, basically ऑफिस के जो हैम्पर्स होते हैं, मतलब एवरीथिंग दैट यू माइट नीड, लाइक आपके ऑफिस डेस्क, ऑफिस एक्सेसरीज या वर्क रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड, मतलब एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. You will be targeting corporate as well. Yes. So we have everything in mind. मतलब it has just started and मतलब fingers crossed that it will work out. But I had this
new कीड़ा inside me that I want to work something I want to do from scratch. मतलब खुद से खड़ा करना, एक ब्रांड बनाना, it's not an easy thing. Correct. चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो या कोई भी हो, मतलब एक ब्रांड खड़ा करना is a learning in itself. तो वो मैं सीख रही हूँ अब. मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बिफोर वी टेक दिस मूव, हमें फुल टाइम किसी चीज़ में जाना है, एक जॉब छोड़ करके, तो हमारे पास एक कॉर्पस होना चाहिए, एक सर्टन अमाउंट होना चाहिए जो हमें बैक करेगा. तो क्या आपके पास भी ऐसा कुछ अमाउंट था या आपने सोचा हुआ था इसके बारे में? हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग से सेविंग्स बहुत किया. तो माय फादर हैज़ बीन वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि भाई सेविंग तो करनी है. तो फ्रॉम द डे वन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मेरा परसेंटेज इतना जाता था सेविंग के लिए, उसके बाद मैं बाकी से स्पेंड करती थी. एंड मतलब मैंने बहुत ही शिद्दत से अच्छे से सेविंग की है. मतलब इंटुइट के शेयर्स हैं एंड मतलब आई हैड वेल इनफ. मैंने वेडिंग भी अपनी की, तो मतलब देयर वाज इनफ. हम लोगों ने अच्छे से मिलके कर पाए हम दोनों. एंड वी हैव इनफ कि मतलब बेसिकली वी वर प्लानिंग टू बाय अ फ्लैट इन बैंगलोर. तो जितना उसमें हमको डाउन पेमेंट करना पड़ता, वो अभी हमने रखा हुआ है कि जस्ट इन केस अगर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए. सो वी आर नॉट बाइंग अ फ्लैट, वी आर नॉट बाइंग अ कार. तो वी हैव गिवन अवे ऑल ऑफ दोज लग्जरीज जो हम लोग यूजुअली कर रहे थे, राइट. अगर हम अभी काम कर रहे होते तो हम ले लेते, फ्लैट ले लेते, कार ले लेते. मतलब जो आप जैसे यूट्यूबर्स कर ही पा रहे क्योंकि आप लोग जॉब कर रहे हो, राइट. बट आई गेस मन था वो कि यार करके देखना है, एक बार खुद से करके देखना है कि लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट. तो फिर जो वो खुशी होगी अंदर से, दैट वुड बी बेटर फॉर मी दैन लाइक अ फ्लैट और अ कार. तो वी आर गिविंग अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ फॉर दैट. यस. ऑलराइट. अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर द कॉर्पस जो आपको लगता है होना चाहिए एक? कॉर्पस जो होना चाहिए, तो द नंबर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई एम लकी इन द सेंस कि माई फैमिली इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, राइट. तो मतलब एनी इमरजेंसी कम्स हेल्थ वाइज, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट सो मच. तो आई हैव इनफ कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years I can easily survive without earning anything. मतलब that was the thing that I had in mind कि एटलीस्ट 2 साल तो आप कंफर्टेबली निकाल पाओ, ट्रैवल भी कर पाओ, आपकी अगर फैमिली को कभी भी ज़रूरत है तो आप कर पाओ, हेल्थ वाइज कुछ दिक्कत हो जाए तो आप कर पाओ. क्योंकि जब आप जॉब छोड़ते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है. यू डोंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस एनी मोर. पहले तो आई एम सो यूज्ड टू कि अगर कहीं पे भी जाना है तो सब रीइंबर्स हो जाता है. अब वो नहीं होता है. मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है. तो यू शुड हैव इनफ कि आप एटलीस्ट 2-3 साल ये सब आराम से निकाल पाओ. तो आई गेस दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल, आप कहाँ रह रहे हो. हाँ. अगर मैं बैंगलोर में रह रही हूँ तो मेरी स्पेंडिंग इज मच मोर वर्सेस अगर मैं अपने होम टाउन भोपाल में रह रही होती तो मेरी स्पेंडिंग बहुत कम होती कंपैरेटिवली, राइट. तो इस वजह से मैंने कोविड में बहुत सेव कर लिया क्योंकि आई वाज एट होम, देयर वाज लिटरली नो एक्सपेंसेस. तो आई एंडेड अप सेविंग अ लॉट ड्यूरिंग कोविड. ऑलराइट. अब मुझे 2 चीज़ों पे क्वेश्चन पूछना है. फर्स्ट इज एक्सपेंसेस, देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. सो बीइंग इन बैंगलोर, क्या क्या मेजर एक्सपेंसेस होते हैं एंड एक मंथली क्या एक्सपेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार यहाँ का तो एक तो फ्लैट का रेंट ही इतना ज़्यादा है. मतलब इट इज़ टू मच. एंड वी वांटेड कि आवर पेरेंट्स कैन कम एंड स्टे. सो वी वांटेड इन अ गुड गेटेड सोसाइटी. सो माय पार्टनर्स पेरेंट्स, लाइक बोथ ऑफ आवर पेरेंट्स, शुड बी एबल टू कम एंड स्टे अच्छे से कंफर्टेबली. एंड आई वर्क फ्रॉम होम, तो वी हैड टू टेक अ 3 BHK. एंड दैट इटसेल्फ इज़ लाइक 70K रेंट, 70-80K. और उसके बाद स्पेंडिंग तो मतलब एटलीस्ट 1.2-1.3 तो आपका स्पेंड हो ही जाता है. आई एम स्टेइंग इन अ गुड सोसाइटी, आई एम स्पेंडिंग अ लॉट, बट आई एम बीइंग ओपन अबाउट इट. मतलब आई हैव नथिंग टू हाइड. आई नो कि मतलब कभी कभी बहुत एंग्जाइटी होती है यार, इससे अच्छा बहुत ही छोटे घर में रह लेते हैं या कुछ कर लेते हैं. बट देन यू थिंक अबाउट इट कि मतलब it is essentially more for parents than for ourselves. So I don't want to compromise over there. Yeah. You also talked about savings and investments. So what are the instruments जिसमें आप invest करते हैं and मतलब what is that discipline which you follow? So a good percentage of money. So my father is very good with stocks. Okay. So he has done like a lot of research and he spends his full time over there, like post retirement. So I have him for my stock management and all of that. So मेरा मतलब most of my savings is heavily invested in stocks. Alright. So that is there. But बाकी तो थोड़ा बहुत जो होता ही है, PF, PPF, FD, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तो होता रहता है. But majorly मेरा investment is into stocks, and that is because I have my father with me. Got it. Can we say that you have achieved financial freedom? So it's a very subjective term. For some people, financial freedom is कि हमको कभी भी काम करना ना पड़े. For some people, it is कि आप छोड़ के अपना passion pursue कर पाओ, right? हाँ, पैसों के लिए काम ना करना पड़े. तो I feel
being able to say कि next 3-4 years का मेरे को पैसे की चिंता नहीं है is good enough financial freedom for Yeah. now that I am okay with, and I don't have any big liabilities. So I feel कि हाँ, because of my savings, because I planned it very well from the day I started earning. मैंने बहुत पैसे भी बचाए हैं, मतलब if you get into the details ना, वो छोटी छोटी चीज़ होती है, कैब नहीं लेके बस लेना, पानी की बोतल लेके जाने की, पानी की बोतल ना खरीदनी पड़े। मैंने उस अमाउंट की, जब मैं 6 LPA 17 LPA कमाती थी, तो मैंने उस लेवल की सेविंग की है। तो आई हैव नेवर स्पेंट कि भाई लैविश लाइफ जीनी है, वो नहीं किया है मैंने, तो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेक द रिस्क। ऑलराइट। अच्छा, देयर इज अ पुश बैक फ्रॉम द सोसाइटी। अगर आप ऐसा कुछ मूव लेने वाले होते हैं, लाइक पेरेंट्स से या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे, तो आपके पास भी ऐसा कुछ पुश आया होगा? हाँ, मतलब लोग बोलते हैं बेवकूफ़ है। मतलब 6 महीने और रुक जाती, स्टॉक्स मिल जाते, इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, राइट? बट मैंने हर टाइम पे ना बहुत ही प्रोस कॉन्स सोचे हैं। इवन जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब छोड़ के, टैली छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन किया था, तब तो माय फादर वाज लाइक, मतलब तब ही डिड नॉट नो कि मतलब आई एम स्किल्ड इनफ या कुछ, ही डिड नॉट हैव दैट ट्रस्ट उस टाइम पे, एंड ही इज़ फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। तो माय फैमिली में लाइक कि पागल हो गई है, इसको कौन जॉब देगा, नॉन सीएस बैकग्राउंड से, 1 साल का एक्सपीरियंस है, जॉब छोड़ के स्टार्टअप करने जा रही है, क्या करें? उस टाइम पे देयर वाज नो शार्क टैंक, स्टार्टअप लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है। मतलब देयर वाज नो, अभी तो सबको पता है ना कि अरे स्टार्टअप कर रही है, चलो गुड। एट दैट टाइम इट वाज लाइक बेवकूफ है। खुद का काम नहीं हाँ करते। हाँ, एग्जैक्टली। एंड बट नाउ माई फैमिली वॉज रियली सपोर्टिव बिकॉज दे नो द अमाउंट आई सेव्ड when they saw the offers coming in. I was at home, so they saw when I was talking to the HRs, and they were actually there, right? And कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता हाँ, है उनका। confidence build हो जाता है, and now they know कि I have built a community, I am teaching people, so they are like जो करने कर। ग्रेट। So now it is better. तो कीर्ति, चेंजेस क्या क्या आए हैं वर्किंग 9 to 5 इन अ जॉब वर्सेस हैविंग योर ओन वेंचर? यार मेंटेनिंग स्केड्यूल इज़ वेरी हार्ड नाउ बिकॉज यू डोंट हैव लाइक कि इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है या ये करना है, एंड पूरे टाइम इतना मोटिवेटेड रहना इज़ नॉट पॉसिबल, सो यू हैव टू लर्न डिसिप्लिन। मतलब कि भाई करना ही है, देयर इज़ नो वन पुशिंग यू, देयर इज़ नो वन आस्किंग यू फॉर एनीथिंग। आपके लिए टिकट रेज नहीं हो रहे हो। यस, एग्जैक्टली। एंड मतलब आप कब नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करोगे, कब आप बाहर जाओगे, मतलब मेरे को वो पूरे टाइम गिल्ट होते रहता है कि यू नो आई कुड हैव बीन वर्किंग ऑन माय वेंचर उतने टाइम पे, आई कुड हैव हेल्प्ड समवन मोर उतने टाइम पे। तो वो एक चीज़ मेरे को सीखनी पड़ी है कि इवन इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, यू हैव टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, मतलब नहीं तो फिर तो बर्न आउट हो जाएगा। तो वो मेरे को लॉन्ग टर्म थोड़ा ये सीखना है अभी भी। एंड वो जो होता है ना कि आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना, कि आप जैसे अपन 5 डेज काम करते हैं, 2 डे आप अपने आप के लिए रखते हो। अभी मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब 7 डेज 24/7 आप काम कर रहे हो। तो आई थिंक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मेकिंग टाइम फॉर माई हेल्थ। मतलब मेरे को लगता है कि 1 घंटा मैं वर्कआउट करूँगी, उससे अच्छा काम कर लो, बट आई नो कि दैट इज़ रॉन्ग, आई नो दैट इज़ रॉन्ग, बट मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। तो आई जस्ट हैव टू लर्न इट इवेंचुअली। यस। ऑलराइट। अच्छा, एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन था। यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि अगर आप शादी कर लेंगे ना तो एक लाइबिलिटी बन जाएगी आपके ऊपर, और दैट माइट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग दैट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग योर ओन वेंचर। बट आपने तो शादी पहले करी, हाँ, उसके बाद स्टार्ट किया। yes. It is about marrying the right person. So those of you who follow me on Insta would know कि I have actually grown a lot more. We have grown together as people, as individuals, as professionals. क्योंकि बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। पहले जो मेरे को घर के काम पूरे खुद करने होते थे, मतलब आई हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ 1000 थिंग्स, अब वो बढ़ गए हैं, मतलब आई हैव टू टेक केयर ऑफ वेरी लेस थिंग्स नाउ, एंड इट इज़ वेरी गुड बिकॉज योर पेरेंट्स नो, एंड अब वो भी चिल हो गए हैं लाइफ में, तो उनको भी कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो नाउ दे नो एवरीथिंग अबाउट योर पार्टनर, राइट? सो अब आप उनके साथ आराम से घूमने जा सकते हो, एंड तो आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो गई है, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल लाइफ पे अच्छे से काम कर पा रही हूँ। Nice. तो बल्कि देयर वाज अ टाइम, स्पेशली जब मैंने जॉब छोड़ी, तो लोग बोलते कि 6 मंथ्स और क्यों नहीं कर लेते थे। दैट वाज बिकॉज आई वाज सॉर्टिंग माय पर्सनल लाइफ देन, नॉट जस्ट माइन, मतलब मेरी फैमिली में माय ब्रदर आल्सो गॉट मैरिड अराउंड द सेम टाइम, एंड वी नीडेड टाइम एज अ फैमिली उस टाइम पे, तो आई टुक सम टाइम आउट फॉर माय पर्सनल लाइफ। But now that is sorted, my professional life is very good because I'm able to give my best to it, and I have the support of both the families, not just one. So Awesome. it's a good way. Yeah, it's about finding the right person for you. Yes, I have been lucky enough. ठीक है।
तो अभी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम लोग. Yeah. ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज टू स्टार्ट योर ओन वेंचर? ये तो फंसा रहे हो आप. देयर इज नो राइट एज. मतलब मैं तो बोलूँगी आपको 17 पे स्टार्ट करना है करो, 10 पे स्टार्ट करना है, 60 पे स्टार्ट करना है, आपको 60 पे शादी करनी है, 21 पे शादी कर लो, जो करना है करो. Gut feeling. नो, हाँ, गट फीलिंग, एग्जैक्टली. Alright. पहले मतलब जस्ट कवरिंग दैट पॉइंट, तो आई यूज्ड टू थिंक कि आई एम नॉट अ गर्ल हु विल एवर गेट मैरिड बिफोर 30, 32. But then I ended up getting married at 27. So yes. Alright. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. मनी वर्सेस पीस ऑफ माइंड. Balance, obviously. More towards peace of mind if you have enough money. Not too much into paisa, but obviously paisa. So balance. वन लास्ट क्वेश्चन कीर्ति. इफ नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन व्हाट? Okay. अभी तो hands down content creation, मतलब without any doubt. बट अगर कंटेंट क्रिएशन के पहले आप पूछते तो आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, मे बी पेंटिंग, डांसिंग, आई हैव इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स. बट अभी तो कंटेंट क्रिएशन, आई डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग Awesome, एल्स. very honest answer. यस. Alright, Kirti, thanks a lot for sharing this information with us. बहुत मजा आया आपसे interact करके. And before we leave, I have a small gift for you. दिस इज टू स्वीट यार, एकदम कॉफी विद करण वाइब आ रही है मेरे को. दिस खाने इज पीने सो की चीजें हैं स्वीट. सारी. थैंक यू सो मच. आई गॉट लिटरेट स्टोर का हैम्पर फॉर यू. तो होपफुली आई विल सी यू using लिटरेट स्टोर की चीजें, Yeah, and I definitely. will send you more. I did not know that he is going to do so much. Hopefully more next time. Can I show this? Sure. तो okay. Awesome. अभी तो this is a LLD based t-shirt. Solid people use solid principles. Do you guys know solid principles? If not, then you can check out her channel. Yes. Thank you. But we have a lot of such school for HLD, LLD. I'm going to send you more. But for now, I got only one. I did not know he's going to do so much. And this was a very spontaneous plan, guys. So Yep. I feel very bad. But I love this t-shirt. thank you. Alright. Thank you for having me.